Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. First of all, I would like to welcome all of you in our departmental course that is Introductory Genetics. Actually, this course was allotted to Mr. Khalil, but unfortunately, he is not available in this week. So, therefore, I will cover some topics for this week. So, these are the objectives of this course, and these are the theory contents, and these are the practical contents. So today I will cover the definition of genetics, and I will give you some brief concepts of heredity and variation, because these heredity and variation are the two important terms in the genetics. So let's begin. We will go to the next slide. So what is the genetics? Genetics is the branch of biology that deals with characteristics that are inherited from one generation to the next. So actually, genetics is the study of characters that are transmitted from parents to their offsprings, and what are the similarities in these characters and what are the differences in these characters. So the similarities and differences are caused by the genes. So study of this gene is also called genetics. So genetics is based on these two terms, that variation and heredity in organisms. इनको हम ब्रीफ थोड़ा और नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह जाके इनको हम पढ़ेंगे, तो और भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. एक्चुअली जेनेटिक्स क्या है चीज़ है कि जो ऑफ पेरेंट्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, वो जो भी करेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, तो और उनमें जो सिमिलरिटीज़ होंगी और डिफरेंसेस होगा, वो क्या कहलाएगा, वो जेनेटिक्स कहलाता है. So first of all, what is the heredity? The transfer of characters or traits from the parents to their offsprings is called heredity. And what is the variations? The difference between the characters or traits among the individual of the same species are called variations. Heredity means the parents produce offsprings approximately same as they have. And variation, sometimes there is variation among the offspring. So why this is happening? So we here in the next slide I will just briefly tell you what are the reasons. So if we look at these pictures, इसमें देखें आप कि ये kids हैं, इनमें भी वेरिएशन है. इनके जो पेरेंट्स, वो एक ही पेरेंट्स के ये किड्स हैं. ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं. फिर इनमें फिनोटाइपिक डिफरेंस है. और ये हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, ये ग्रेप्स हैं. इनके स्पीशीज़ तो सेम है, बट आप देखिए इनका फिनोटाइप फिर भी डिफरेंस है. तो ये जो डिफरेंस है, ये वेरिएशन है. और हेरिडिटी क्या हुआ कि इंसेक्ट्स जो होंगे, जो भी इंसेक्ट होगा वो सेम तरह के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा. जो फ्रूट है, ट्री है ये ग्रेप्स का, तो वो उसी तरह के फ्रूट्स देगा. लेकिन उनके दरमियान भी जो वेरिएशन होगा, वो जो डिफरेंस कहलाता है, वो क्यों होता है, उसको हम आज थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे इस लेक्चर में. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. देखिए, अगर वेरिएशन नहीं होगा, बिकॉज वेरिएशन इज़ द बेस फॉर द इम्प्रूवमेंट. इफ़ देयर इज़ नो वेरिएशन, देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट. अब अगर सब एक जैसे दिखने लग जाएं, तो फिर उसमें से हम क्या सिलेक्शन करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे. सिलेक्शन तब होगी जब वेरिएशन होगा. पिछले स्लाइड में अगर आप देखें, 3 डिफरेंट टाइप्स के करेक्टर थे या ट्रेड्स थे ग्रेप्स में. अगर वो एक तरह होते तो फिर तो हमारे पास चॉइस ही नहीं थी, हम एक ही ग्रीन कलर को खाना पड़ता. अब देखिए उसमें आपके पास ब्लैक और रेड पे था, तो इट्स मीन ये क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है और उसमें टेस्ट भी डिफरेंट होगा. तो ये क्या होगा, अगर इस तरह के डिफरेंस होगा तो वेरिएशन होगा. तो नेचर ने ये शामिल है इसमें, नेचर में, कि वो खुद ही वेरिएशन क्रिएट करता है. तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. Accumulation of variation during the reproduction. When organisms reproduce, the offspring show minor variation due to inaccuracies in DNA copying. These variations are less in sexual reproduction. ये जो ए वेजिटेटिवली प्रोपिगेट होते हैं, उनमें ये वेरिएशन कम होती है. और जो एंड मोर इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में कुछ हैं जहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाकी हायर एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो इनएक्यूरेसीज डीएनएज में आते हैं एक्चुअली वही काज करते हैं वेरिएशन। और फर्दर ये फिर क्या है, सम ये दो टाइप्स के वेरिएशंस होती हैं। सम वेरिएशंस आर यूजफुल वेरिएशन एट दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि ये एक इंसेक्ट्स का जो ब्राउन कलर का है, इनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, और यहाँ पर एक ग्रीन कलर का है, ये एक आपको दिखाई दे रहा है। इट्स मीन, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या है कि जो ये ब्राउन कलर है, ये जब प्लांट्स मिच्योर होते हैं उन पर अटैक करते हैं, तो ये अपने ब्राउन कलर की वजह से अपने बर्ड्स को ये दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से ये कम शिकार होते हैं और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और ये जो ग्रीन कलर है ये डोमिनेंट कलर है, ये इन बर्ड्स को ईजिली ये विजिबल हो जाता है और उसको क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो ये वेरिएशन क्या है, ये इसको हेल्प करता है। और जो वेरिएशन, और सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म। देखें आपके पास दो टांगे, अगर तीन होंगे तो आपको क्या होगा, मुश्किल होगी चलने में। तो ये क्या है, ये जो है ये नॉट हेल्पफुल है। तो फिर ये जो चेंजेस होंगे इन्वायरमेंट में, ये ऑर्गेनिज्म इसमें क्या कर सकता है, वो डाई कर सकता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो एक्चुअली जेनेटिक्स क्या है, स्टडी जेनेटिक्स क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो करेक्टर्स क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करेंगे, और जो इनहेरिट करेंगे उसके दरमियान भी जो वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन की स्टडी को क्या कहते हैं, हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसको आगे आपको इंशाल्लाह वो खलील साहब पढ़ाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, और मेरे ख्याल में ये लास्ट स्लाइड है, और आप क्वेश्चन पूछें जब आपके पास ये जो टाइम टेबल में जो शेड्यूल टाइमिंग है क्लासेस क्वेश्चन आंसर का, अगर आप उसको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना तो आप वहाँ क्वेश्चन पूछें। तो इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर भी आपको वीडियो शेयर करूँगा, आप उसको भी देखें। सो थैंक यू वेरी मच।